So welcome everyone. Welcome to the Life Leader channel. Again, I'm back with a very special guest. मेरे साथ है आज एक नेवल ऑफिसर है. He is not from defense forces, but he is from a different naval profession. I would actually ask him to introduce himself. I think वो ज़्यादा सही रहेगा. So here he is. Hi, Kanch. I'm Captain Sameer Saxena. Nice to meet you, sir. Thank you, thank you. Same here, same here. So very delighted to be here with you और आपसे आज बात करने का मुझे मौका मिल रहा है. Although मैं frankly बता दूं, मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूं. हम लोग एक्चुअली फैमिली एक ही फैमिली के हैं, बट ये एक अलग ही फील्ड से हैं जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है. सो अगेन आई विल नॉट गोइंग टू टेक द स्टेज. आई विल आस्क समीर भैया, आई कॉल हिम भैया, सो आई विल आस्क समीर भैया टू एक्चुअली टेक द स्टेज एंड टॉक अबाउट हिज प्रोफेशन. तो सबसे पहले भैया आप बताओ कि थोड़ा अपना सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए. आपका लाइक वेयर वर यू बोर्न, क्या आपका चाइल्डहुड रहा? So, Ikanch, my name is Captain Sameer Saxena. I was born in Delhi and I did my schooling. I was brought up in Jaipur. I did my schooling from India International School, cleared my 12th in 1996. Nice. So, this was my journey. And after that, I joined Merchant Navy after I cleared my 12th. So, this was also, I joined 27 years back. Wow, So it's more than 27 years Nice. that I have been continuing this, and I'm planning to do this for another, let's say, 10 years. Okay. So it all depends on the situation, what the situation is, Right. कैसे आगे जाएंगे, कैसे things shape up होती हैं. Nice, nice. तो बस ऐसे ही चल रहा है यार. It's all fun. Otherwise, Very good. This life is full of adventure, excitement. There's full of excitement in this field. I'm So sure I'm आपके proud of my. वेरी गुड. Job. एंड आई एम श्योर आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे. बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके पास जो ये हमें तो बता चुके हैं, मेरे को तो बता चुके हैं, बट आज सबके साथ शेयर करेंगे. पहली बात तो भैया आप ये बताओ कि आपने मर्चेंट नेवी के बारे में सोचा कैसे? पहली बात, आपने क्या इस प्रोफेशन के बारे में कभी सुना भी था कि मर्चेंट नेवी जैसी कोई चीज होती है? नेवी तो आई एम श्योर आपने सुना होगा, बट डिड यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज दैट टाइम कि यार ये क्या नेवी डिफेंस वाली है या दूसरी वाली है? वो आप कुछ बताओ कैसे आपने. See, Ikansh, it all started, when I was in 10th standard. Okay. I had the passion, for adventure since beginning only. And when I was in 12th, two of my friends' father, they were already in Merchant Navy. They were masters in Jaipur, from Jaipur itself. So I was very much excited to see them, roaming around the world. They used to show me their photographs. And बस तभी से ये सब passion start हुआ. अच्छा. मैंने भी सोचा यार 12th में, then after I clear my 12th standard, I should also join this. तो उसके बाद I started preparing and giving exams for the same field. ठीक है. And this is one of the reason I had the best currency and coin collection in my school at that time. In 90, you can say almost 26 years back. I remember that. मैंने देखे हैं वो collection. That's how it all started, because of my friends. Right. Because in that time in Jaipur, this Merchant Navy field was not very popular. Only the guy in the metro cities. So basically, they used to join this field. So that's how all it started. Right. So Merchant Navy join करने के लिए, I think minimum qualification is you should have PCM, if I'm not wrong. Yes, you are right. You are right. में शायद होना चाहिए. So basically, after I cleared my 10th, so I had science. The minimum qualification is that you should have science with maths. And that too with minimum 60% of percentile. Okay. अभी पता नहीं वो चेंज हो गया कि सेम परसेंटेज है? No, it is still the same. It is still the same. The only difference is that in that period we used to do 3 months of pre-C training that I did from TS Rahman. So what is PC? PC is basically physics, chemistry, maths and English. Okay. PCM हम लोग शायद उस वक्त PCM भी बोलते थे उसको. Yes. Okay. So you should have minimum 50 percentile. Right. Sorry, minimum 60 percentile in that. So that was a minimum requirement. Still the requirement is same. But in that period, our training was only for 3 months. We had to do after we used to clear our 12th, we had to do 3 months of pre-C training, and then we used to go on the ship. Now the things have changed. Now it's like 18 months of pre-C training, and then the rest of the period you have to do as practical on ship. So the total period you can say is for 3 years. Achha. So that after you complete your 3 years, you get the degree of BSc in Nautical Science. Okay. This I'm talking about the navigational side. And if you join as an engineer, then you have to do BTech in marine engineering.
अच्छा, so So three, this is the 3 years post 12th, right. है ना? Okay, ठीक 3 है. years post 12th. Okay. You have to do your training that includes college plus practical training on ship, and which will eventually give you the degree to serve as an officer Okay. in merchant navy. अच्छा. तो बस ऐसे यही प्रोसीजर है जो चल रहा है. राइट. सो आपने एज क्या ज्वाइन किया सबसे पहले मर्चेंट नेवी, और आज आप किस रैंक पे हैं? तो देखो एकांश, इट ऑल स्टार्टेड एज अ डेक कैडेट. So once you join on the deck side, so you join as a deck cadet, and if you join on the engine side, you join as a junior engineer. Okay. So after you complete your 3 years of training, then you have to give your exams, for the officers. And I will just touch one field by one field. उसके बाद आप अगर डेक साइड की बात करो तो आप बनते हो थर्ड ऑफिसर, then you become second officer, then you become chief officer, and then you reach the rank of a master. Okay. Master or captain, whatever, अच्छा. And engine side में you join as a junior engineer, then you become fourth engineer, then you become third engineer, then second engineer, and then chief engineer. So if you talk about deck side, master is the overall in charge of the ship. And if you talk about chief engineer, he is the overall in charge of all the machineries. क्योंकि जैसे कि आपको पता है ship is full of machineries. Ship कैसे चलता है? So he is in charge of all the machineries, all the maintenance, part of the ship. Okay. और जो कैडेट एज अ कैडेट आई थिंक ज्वाइन करते हैं, राइट, उसकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वहाँ पे? See, the cadet has to learn each and everything. Okay. So once you join any entity or any institute, so they make you learn each and every field. So as a deck cadet, you have to learn the roles and responsibilities, the job responsibilities of all the fields, of all the ranks. So he basically gets the basic idea, and then he has to eventually grow in his life, learn more and more. The more interest he shows, then he'll evolve as a better person, a good personality. So it's all about your interest. So when you say he has to do everything, I think everything को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आई डोंट नो, वो एक इमेज कभी कभी बन जाती है, यार अपन तो वहां पे गए एज अ कैडेट, बस अपने को नॉर्मल काम करना है और अपना करियर सेट है. लेकिन आई एम श्योर ऐसा नहीं होता, जो कि मैंने आपसे बहुत बार सुना है. तो क्या क्या काम करने पड़ते हैं? क्या सफाई से लेके एक क्लरिकल काम जिसको हम बोलते हैं, वो भी करना पड़ता है? वो थोड़ा सा डिटेल में उसको बताओ. देखो एकांश, उसमें क्या है बेसिकली क्या है कि द ग्रास इज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड. राइट. ये सारी फील्ड्स के साथ है. नाउ द ग्रास इज ब्लू. इट इज नॉट हंकरडोरी जो आपके दूर से दिखता है कि इट्स ऑल रोजेस ऑल अराउंड. इट्स नॉट लाइक दैट. Full of challenges. This life is full of challenges, full of hard work. तो आप कोई सी भी फील्ड पकड़ लो यार, देखो जिसमें आपको हार्ड वर्क करोगे उसी में आप सक्सीड होगे, जिसमें आप हार्ड वर्क नहीं करोगे उसमें आप सक्सीड नहीं होगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको अपना जितना एफर्ट आप इसमें डालोगे उतना ही आप बेटर इवॉल्व होगे. सो इफ यू टॉक अबाउट डेक कैडेट, देन उसके अंदर उस फील्ड में क्या है, आपको he has to learn all about the navigation, all about the cargo operations, all about the safety, how to work. The ship, on ship when you're working, it's all about the safety culture which you have to take care about. अच्छा. So safety हो गया आपका, उसमें आपके safety equipment से related जो भी maintenance work होता है, all related to third officer. Fire fighting हो गया आपका. Then he has to learn everything about the navigation, because navigation is one of the crucial part of the system. Then the cargo operation. Have you ever, imagined why the ship runs and what it carries? I think different commodities, like yes, maybe. It carries all kind of different commodities, you can say. So there are dry ships, then there are oil tankers which carry all kind of oils. You can say petrol, diesel, jet fuel, vegetable oil, chemicals, alcohol, water, whatever liquid you are thinking. So it can be about that. Then you have LPGs, then you have LNGs, then you have car carriers. There's dedicated ships for each and every field. तो ये कहलाता है कार्गो. What cargo you are carrying on a ship? So the सब कुछ रिवॉल्व करता है आपके शिप के ऑपरेशन पे. The ship has to operate in a safe manner to carry cargo from point A to point B. Okay. तो इसकी ट्रेनिंग हमें जो दी जाती है. अच्छा. तो वो I'm so sure. he has to learn all things related to
द ऑपरेशन ऑफ द शिप। किसी भी चीज को बनाना बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसको ऑपरेट करना, उसको रन करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। इमेजिन इफ यू हैव बिल्ड अ होटल, टू रन अ होटल, टू मेंटेन अ होटल इज डिफिकल्ट rather than building a hotel or a apartment or a condo or anything, So operations is always tougher than implementing a project. Tough. Yes. So our main job is to operate the vessel safely. True. In the most economical way. True. Okay. तो इसी चीज की पूरी ट्रेनिंग, कार्गो को कैरी करना, like if you talk about the engine, so we have to take care of the engine also. आपके गाड़ियों में इंजन होते हैं, है ना, उनको भी मेंटेनेंस चाहिए होती है। So it's a continuous process. It's a continuous 24 hours job. It is a very tough job. It's not simple, but on the other hand, you get to see the full world. जो हमने जिस लाइफ में सारी चीजें देखी हैं, वो शायद आज तक किसी ने नहीं देखी होंगी। तो यही एक एक्साइटमेंट था उस टाइम पे हमारे के अंदर कि you get to see the full world. You do your job, you enjoy your life, you work hard, you party hard. Correct. So this is how we enjoy on the ship. See, देखो जब when I joined this long time back in 1997, तो उस टाइम पे I flew to Portugal. Okay. So that was one of the exciting moment for me that I'm flying to Portugal because Portugal is a party place. Then वहाँ से मेरे को ship join करना था. So there was a port by the name Lisbon. Okay. अगर आपने सुना हो, just Google it and see how beautiful Lisbon is. तो it was full of excitement for me, तो हाँ, मजा आया एंड इट वाज ब्यूटीफुल। जैसे आप बात कर रहे हो एयर क्वालिटी की, तो ऑब्वियसली वंस यू गो ऑन शिप यू गेट फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, एवरीथिंग इज पॉल्यूशन फ्री। करेक्ट। सो यही एक मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि सिंस एवरीथिंग इज पॉल्यूशन फ्री, सो यू हैव टू रन द शिप टू सेव द environment. Correct. So all the policies, all the rules and regulations, they are all built nowadays to run the ship in a safe way, at the same time saving the environment. True. तो तभी हमको फ्रेश एयर और वो सब मिलेगी वहाँ पे। True. उसी के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट होते हैं। ओके, नाइस, थैंक यू सो मच। आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया, आई एम श्योर बहुत चीज़ें समझ में आई होगी सभी को, व्यूअर्स को। अब आप मुझे ये बताओ कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है यार, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली, बाहर अलग अलग कंट्रीज में घूम रहे हैं, एंड टू बी फ्रैंक किसी और के एक्सपेंस पे घूम रहे हैं, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है किसी के लिए। ठीक है, देयर इज अ पार्ट दैट इट इज़ योर प्रोफेशन, आप काम भी कर रहे हो वहाँ पे, बट एक होता है कि अच्छा साइड जो लगता है ना दूसरे का, लाइक यू सेड ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो मैं इस साइड में बैठा तो मुझे लगा ये सही है यार, अपने दूसरे के एक्सपेंस से घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आई एम श्योर इसके कुछ ना कुछ कॉन्स भी होंगे। With respect to your personal life, your professional life, how stressful is that, and how do you actually make balance between your personal professional life? इसके बारे में आप बताइए कुछ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि जो आपको मैं बताऊं, मेन चैलेंज तो यही है, मेन चैलेंज यही है हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड अ पर्सनल लाइफ। बेसिकली चैलेंजेस तो फुल है इस फील्ड में, आपको पता ही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो सीवियर वेदर कंडीशन, जो सबसे कॉमन चीज है वो है सीवियर वेदर कंडीशंस, हरिकेन्स। जैसे विंटर्स में इफ यू टॉक अबाउट हरिकेन्स, यू टॉक अबाउट द पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, दैट इज फुल ऑफ रफ सीज। उसमें मजा आता है फिर नेविगेट करने में। यू मस्ट हैव सीन द वीडियोज ऑन यूट्यूब, इट इज सो एक्साइटिंग टू सी। लेकिन वो जितना आपको वीडियो में जितना एक्साइटिंग लग रहा है ना, उतना ही वो डेंजरस होता है। इट इज नॉट सो ईजी। जैसे मैंने बोला कि ग्रास इज नाउ द ब्लू, ग्रास इज नॉट ग्रीन एनी मोर नाउ। True. हर फील्ड में सेम चीज है। तो पर्सनल लाइफ की जैसे आपने बात की, क्योंकि वहां पे इतना स्ट्रेस हो जाता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। यू हैव नोबडी टू स्पीक टू। वी हैव द क्रू ऑफ, यू कैन से अराउंड 18 to 20 people, which includes cooks. So we have 2 cooks, then we have the strength of around 9 officers, which includes both deck officers and engine officers. Then we have around 7-8 crew members, okay, who take care of all the maintenance on ship. तो बस हम मतलब it's a small family of around 18 to 20 people, which includes your deck officers, your engine officers, your crew, your catering department, खाना बनाने वाले जो भी होते हैं वो सब का। तो हमें ये फैमिली के अंदर ही रहना पड़ता है। तो अब सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। ये फील्ड ऐसा है कि आपको ऑन बोर्ड लोनलीनेस लगती है कई बार, you become threatened because of the severe weather conditions, और loneliness हो जाती है,
यू नो। ओके। प्लस आपका जो कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है इन ओल्डन डेज इफ वी टॉक अबाउट, तो उस टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था, तो हम लोग महीने या लेट्स से 2 हफ्ते में एक बार फोन कर पाते थे घर पे, एंड दैट टू थ्रू द सैटेलाइट फोन, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता था। राइट। जितना आपका यहाँ पे साल भर का एक बिल होता है, वहाँ पे एक फोन कॉल में उतना बिल आ जाता था, तो ये इतना एक्सपेंसिव होता था। ये तो इंटरनेट अभी पिछले आफ्टर पैंडेमिक, यू नो, पैंडेमिक के बाद कंपनीज ने सोचा कि यू नो हाउ टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, और लोगों की जो लोनलीनेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सब खत्म करने के लिए दे हैव स्टार्टेड गिविंग इंटरनेट नाउ। ओके। सिंस पास्ट यू कैन से 3 to 4 years मैक्सिमम। उससे पहले शायद इंटरनेट भी नहीं था। उसके बाद आपका व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ। अभी तो द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि जब से आपका एलॉन मस्क का स्टार हब आया है, वो भी इंस्टॉल हो रहा है, द इंटरनेट चार्जेस हैव बिकम वेरी चीप। तो अभी तो वी आर कंटिन्यूअसली इन टच, मतलब द थिंग्स आर इम्प्रूविंग स्लोली एंड आई एम श्योर दे विल इम्प्रूव, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। राइट। और तो यही सब चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपका लोनलीनेस हो गया, मैंने आपको बताया, सी सिकनेस इज अ मेन थिंग। वंस आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ जूनियर इंजीनियर जिसने ज्वाइन किया था, ही वाज बीटेक करके आया था वो, एंड ही ज्वाइंड व्हेन ही वाज अराउंड 19 or 20 years। ओके। तो उसको ही कुड नॉट बियर द प्रेशर इन द इंजन रूम, क्योंकि वहाँ पे इतनी हीट होती है, इतनी हीट होती है कि उसको रैशेस हो गए, तो उसको 2 महीने में छोड़ के जाना पड़ा। प्लस कुछ लोग आते हैं जिनको सी सिकनेस, मोशन सिकनेस होती है, सी सिकनेस होती है, यू नो, तो ये सब चीजें आपके इंटरनेट से नहीं जाएंगी, इट्स ऑल फ्रॉम इनसाइड। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग, आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ता है वहां पे यार। मतलब इट्स एक्चुअली फुल ऑफ एक्साइटमेंट, द लाइफ इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एडवेंचर्स, मजा आता है, लेकिन आपको उसको एंजॉय भी करना पड़ता है। अगर आप यू कैन नॉट बी होम सिक, अगर आप इस टाइप, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बहुत जल्दी होम सिक हो जाते हो। जैसे हम भी अपने घर से पहली बार निकले थे व्हेन आई स्टार्टेड, यू नो, आफ्टर माय 12th, तो हम साल भर बाहर रह के आते थे, तो हमारे लिए ये एक्साइटमेंट होता था कि अरे एवरी नाउ एंड देन वी आर विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज, सो इट वाज फुल ऑफ फन, लॉट्स ऑफ शॉपिंग, मजा आता है, न्यू फूड, यू नो। आजकल तो, अब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 27 साल पहले की, जब इंडिया में कुछ नहीं था। अभी तो यहाँ पे इतना कुछ हो गया है कि एवरीथिंग इज हियर ओनली, तो इट्स नॉट अ कल्चरल शॉक फॉर अस नाउ। 27, यू कैन से 30 साल पहले इट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन। ट्रू। लेकिन अभी भी इट्स नॉट वेरी इजी इफ यू टॉक अबाउट द न्यू पीपल हु आर जॉइनिंग। तो आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जितना हार्ड वर्क डालोगे उतना ही आप सक्सीड होगे, उतनी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और अगर आप किसी भी चीज को यू नो ऊपर से टच करोगे तो आप इतना सक्सीड नहीं होगे। राइट। सो आई एम श्योर आपने अपनी फैमिली को तो मिस किया ही होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। बट डिड यू एवर थिंक इन बिटवीन कि यार बस बहुत हो गया, आई मीन आई नीड माई फैमिली अराउंड, राइट, माई पेरेंट्स, माई वाइफ, ही हैज अ डॉटर ऑल्सो, 12 years old डॉटर, तो सबको याद तो आती है अपनी फैमिली की। डिड यू एवर थिंक कि नहीं यार बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस लोनलीनेस या फैमिली से दूर रह के? हाँ, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। ये फीलिंग आती है, सबको आती है, लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एज, यू नो, आप किस एज में हो। वंस यू जॉइन एज अ डेक कैडेट और यू आर 3rd officer, 2nd officer, तो उस टाइम पे क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम होती है। तो जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं, देन यू सेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फिर जैसे जैसे आप रैंक में सीनियर होते हो, वंस यू बिकम मास्टर, यू नो टच 37 or 40 years of age, उस टाइम पे आपको लगता है यार अब बस बहुत हो गया, आई शुड स्विच ओवर नाउ, आई शुड सेव एनफ मनी, यू नो, सो दैट आई कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एंड आई शुड कम बैक होम। लेकिन वो जो पीरियड मैं आपको सही बताऊं, जैसे जो मेरी लाइफ में हुआ है, वो 2-3 साल तक ही रहता है। अगर आपने वो 2-3 साल उसको बियर कर लिया, आपने कंटिन्यू कर दिया, देन इट्स फन। फिर उसके बाद इट्स फन फॉर यू। I think it because all you have worked so hard to become captain or master. Correct. And after reaching that stage, if you talk about leaving your job, right, so that should not happen. You should love your job to continue it. Right. So that's how it goes. Right. And I think every human being is different, right? कुछ लोग pressure झेल जाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते. Yes. So I think we cannot blame anybody individually. But जैसे मैंने कहा, कुछ शायद एब्जॉर्व कर जाते होंगे उस प्रेशर, कुछ नहीं कर पाते, तो बिकॉज दे माइट बी दे लीव। जैसे आपने एग्जांपल बताया, एक कैडेट ऑफिसर थे जो बॉयलर रूम में थे, वो नहीं झेल पाए। Absolutely, you're absolutely right. So basically you have to think from here, you don't have to, you know, work from here. Correct. जो लोग दिल से काम करते हैं, उन लोग के लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो दिमाग से काम करते हैं, वो थोड़ा सा इजीली सेटल हो जाते हैं। Right.
इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा. सो यू हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड. ट्रू. यू नो यू हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड. ओके. अच्छा, इतने बड़े मतलब इतने बड़े टेन्योर में जो आपने 27 साल कुछ बताया मर्चेंट नेवी के अंदर, आई एम श्योर बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो फनी भी होंगे, कुछ कुछ ऐसे सीरियस वाले भी हुए होंगे जिसमें आपने कहा यार ये मैं किस सिचुएशन में फंस गया, उसे कैसे निकाले. तो कोई भी, आई एम श्योर वैसे तो बहुत सारे होंगे, 27 साल में तो पता नहीं कितने कितने कोई भी एक्सपीरियंसेस बता सकता है अपने, बट ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी खिंच जाएगी. तो मे भी कोई एक जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता हो आज भी, इसको सुन के आज भी आप सोचते हो हाँ यार ये मेरे साथ हुआ था, आई विश ये कभी ना होता, मे बी ऐसा कुछ. नहीं हुआ तभी वो एक्साइटमेंट हुआ. ओके. अगर नहीं होता तो वो एक्साइटमेंट भी नहीं होता. यू नो जैसे कि आपको मैं जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, दिस इज अ वेरी करंट एग्जांपल. इफ यू टॉक अबाउट द वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन इन रेड सी, जो शिप्स आप एवरी नाउ एंड देन न्यूज़ सुनते हो कि शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे अटैक हुआ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वे बैक इन 2008 मेरे साथ 2 बार हुआ है रेड सी में सिचुएशन. ओके. सो 2008 में माय फैमिली, आई वाज रिसेंटली मैरिड एट दैट टाइम. सो 2008 या शायद 9 की बात होगी, जब ये सोमालिया पायरेसी बहुत पीक पे था. तो उस टाइम पे मेरी वाइफ भी साथ में थी. तो उस टाइम पे कंपनी के रूल्स नहीं थे, यू नो दैट यू हैव टू डीबोर्ड योर फैमिली वंस यू ट्रांजिट द एचआरए एरिया. दिस कॉल्ड एचआर हाई रिस्क एरिया. ओके. तो माय फैमिली वाज अलोंग विथ मी. तो इट वाज फन फॉर देम. अभी तो फन हम बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं था. क्योंकि उस टाइम पे जो आपको एंटी पायरेसी वॉचेस रखनी होती हैं, तो माय वाइफ यूज्ड टू कीप द एंटी पायरेसी वॉचेस विथ मी ऑन द ब्रिज. उससे क्या होता है? व्हाट इज दैट एंटी पायरेसी? इट्स बेसिकली यू नो वंस यू आर ट्रांजिटिंग दैट एरिया, तो जो पायरेट्स होते हैं वो आपको चेस करते हैं. तो उनको सेफगार्ड करने के लिए आपको पहले से पता लग जाए कि आपको कोई चेस कर रहा है पानी में, तो आपको वॉचेस रखनी पड़ती हैं. दैट इज 24 आवर्स जॉब. तो बेसिकली मर्चेंट नेवी इज नॉट, यू नो, इट्स नॉट योर 10 o'clock to 5 o'clock वाली जॉब. इट्स अ 24 hours जॉब बिकॉज द मशीनरी इज मूविंग 24 hours, सो यू ऑल्सो हैव टू वर्क 24 hours. तो उस टाइम पे मेरी वाइफ ने मेरे साथ वॉचेस रखी थी. सो इट वाज फन. ओके. यू नो उस टाइम पे हम भी फिर कितने 28 साल के थे. अच्छा. अभी आई एम 44. सो इट वाज फन एट दैट टाइम. तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माय फैमिली, क्योंकि वो अभी भी बोलती है कि जब पायरेसी वाज एट पीक, उस टाइम पे उसने ब्रिज पे वॉचेस रखी थी. फिर मैं आपको बताऊं उसके बाद समवेयर अराउंड 2015 में वी वर ट्रांजिटिंग अलोन. आई विल शो यू फ्यू फोटोग्राफ्स आल्सो. I will paste those photographs. Yes, I will show you those photographs. तो उस टाइम पे हम जब भी एचआरए एरिया क्रॉस करते हैं, सो वी पिक, लाइक उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे फ्रॉम एशिया टू यूरोप, तो हम श्रीलंका से आर्म गार्ड्स पिक करते हैं. सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट, द कंपनीज रिक्वायरमेंट और द चार्टर्स रिक्वायरमेंट यू कैन से. तो उस टाइम पे हमारे पास आर्म गार्ड्स भी थे. देन वी वर कीपिंग द एंटी पायरेसी वॉचेस. तो उसको मैं फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, सो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू. तो उस टाइम पे हम दिस इज अ प्लेस कॉल्ड बाबुल मंडप. Okay. So it's a place between Yemen and Somalia. तो वहाँ से हम पास कर रहे थे, तो बोट्स ने हमें चेस किया था. तो पहले तो देख के एक्साइटमेंट हो गया कि पायरेट्स आर चेसिंग अस. लेकिन उस टाइम पे देन वी हैड टू टेक द एक्शन आल्सो, जिसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ फील्ड फुल ऑफ एडवेंचर, एक्साइटमेंट, मजा आता है. अरे यू नो जो चीज़ें आप न्यूज़ में सुन रहे हो, वो चीज़ आप रियल में एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो उसकी मैंने फोटोग्राफ्स खींची. बट वी वर, यू नो, we took the actions very promptly, कि उनको पता लग गया कि ये शिप पे द पीपल आर अलर्ट, क्योंकि अगर पायरेट्स हमें चेस करेंगे तो हम उनको, यू नो, उनके अगेंस्ट हम रिटेलिएट करेंगे, फायरिंग करेंगे. तो वो लोग ज़्यादा पास नहीं आए थे. तो इट वॉज दैट इंसिडेंट्स आई स्टिल रिमेंबर. Okay. फोटोग्राफ्स मेरे पास अभी भी हैं, दिखाता हूँ मैं आपको. Nice. Please do share those photos with me. Yes. So I'm sure ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, बट बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत लंबा. जैसे मैं आपको पायरेसी का बताऊं. पायरेसी आजकल आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, एवरीवेयर देयर आर पायरेट्स. इंडोनेशिया वाटर्स में चले जाओ, वहाँ पे पायरेसी है. सिंगापुर स्टेट्स में चले जाओ, वहाँ पे पायरेसी है. फिर आप अफ्रीका वेस्ट कोस्ट पे चले जाओ, वहाँ पे पायरेसी है. रेड सी, वहाँ पे तो आपको पता ही है अभी क्या चल रहा है. दिस वॉर, यू नो, दे आर बेसिकली टारगेटिंग द यूएस यूके शिप्स. True. फिर आप ईरान चले जाओ, दैट एरिया इज फुल ऑफ पायरेसीज. एवरीवेयर देयर इज वॉर. Nice. So you can say it's full of fun. Wow. यहाँ पे बैठ के तो हमें फन लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जाके पता लगता है. हाँ, I mean यहाँ सुन के तो it is not fun. You know, you can die any moment. Of course. It's a very dangerous job. जैसे I मैंने tell you आपको what. बताया, full of adventure, danger, excitement. The best part is that you see the full world. Right. ऐसा कोई एरिया नहीं है जो मैंने अभी छोड़ा हो.
I've been all around the world, from north to south, east to west, except few places. Always you can say not Greenland नहीं गया अभी. And yes, नाइस. इनफैक्ट मैं जो आपने बताया ना कि सुन के बहुत एक्साइटिंग लगता है, मैं कल ही एक शौर्य चक्र अवार्डी हैं आर्मी से, उनसे कल मैं मिला था. ऑब्वियसली ही इज वेरी सीनियर. okay. तो ही वाज इनटू एविएशन इन आर्मी. सो वो हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाई करते थे. कल उन्होंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताए, जैसे आपने एक बताया आपके साथ ऐसा हुआ, जो कि एक्चुअली तो डराने वाली इंसिडेंट है, बट यहाँ बैठ के हाँ इट इज एक्चुअली स्केरी है ना, लाइफ थ्रेटनिंग भी है वो, बट यहाँ सुन के अच्छा लगता है. उन्होंने भी अपने इंसिडेंट्स बताए एंड आई वाज लाइक बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा था, अरे यार ऐसा होता है वैसा होता है, काश मैं भी उस सिचुएशन में होता. बट आई थिंक मैं नहीं था, वो ज्यादा सही था, क्योंकि उसके लिए कुछ और लोग बने हैं जैसे वो थे या आप हैं. तो आई एम श्योर सुन के तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें, बट आप जब उस सिचुएशन में होती है, आई एम श्योर इट इज वेरी difficult to be part of it. It is right? Very difficult. But Okay. this is what we have been trained for. Yes. जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है वो इसी चीज के लिए दी जाती है. True. How to handle the emergency situations on board, out at sea. क्योंकि वहाँ पे आप ही को सब कुछ करना है, आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा. So it is that team of 18 to 20 people, what I just explained to you. तो हम 20 लोगों को मिलके ही अपने आप को सेव करना है, फाइट करना है, whatever. It can be in terms of emergency or anything, you know. It can be a medical emergency. True. Now let's go back. जैसे आपने बताया कि कैसे कैसे ज्वाइन किया जाता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है. आपके टाइम पे only boys were allowed to do it this or girls could also do it? नहीं, गर्ल्स भी करती थी. अच्छा, ऐसी बात नहीं है. लाइक जैसे कि इफ यू रिमेम्बर कैप्टन राधिका वुमेन, जिनको अभी यू नो ब्रेवरी अवार्ड मिला है आउट एट सी. सो शी इज द फर्स्ट लेडी कैप्टन टू गेट दिस अवार्ड. वो हमारी सीनियर ही हैं. तो इस टाइप से पहले भी आती थी, लेकिन आजकल क्रेज थोड़ा बढ़ गया है, तो गर्ल्स आर आल्सो कमिंग, द मोस्ट वेलकम, बिकॉज बट आई थिंक मुझे लगता है गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहता होगा, बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बायस्ड, बट मुझे कुछ ऐसा लगता है कि बॉयज फिर भी एक इस स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे से शायद टैकल कर लेते हैं वर्सेस अ गर्ल. दैट इज़ व्हाट आई फील. पता नहीं आपका क्या व्यू है इस बारे में. आपके कोई कोलीग्स हैं वहाँ पे जो सेलिंग में है गर्ल्स? यस डेफिनेटली. वो कैसा फील करते हैं? आजकल जो गवर्नमेंट है वो खुद प्रॉम्प्ट कर रही है गर्ल्स को आने के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड था जो कि थोड़ा सा एलियन फील्ड था फॉर द गर्ल्स. लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू द सिचुएशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. आपको वहाँ जाने से पहले उसके जो हार्डशिप है उसके बारे में आपको पता करना पड़ता है. आजकल तो गूगल है, यू जस्ट गूगल एंड यू गेट एवरीथिंग इन हैंड. पहले तो क्या होता था, हम लोग जाते थे, फिर जो भी एक्सपीरियंस होता था उसको शेयर करते थे जूनियर से, सीनियर से. आजकल एवरीथिंग इज ऑन गूगल. सो आपको जाना है, आप it's full of fun. पार्टीज करो, मस्ती करो. Absolutely. So I'm sure अब तो गर्ल्स के लिए भी ये डोर बिल्कुल ओपन है, और पहले भी था, बट अब ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है. अभी भी आ रहे हैं और अभी एक्सपोजर ज़्यादा है. Okay, nice. So they are also enjoying. Captain Radhika Menon, true. She's a live example in front of all the girls. So in case if any girl wants to join Merchant Navy, you have the answer. Yes. Open for everybody. You should have the passion to do that. Yes. You should be passionate. You should have the love for your job. Yes, absolutely. ठीक है सर. अब भैया इसको आई थिंक बहुत कुछ आपने बताया. अगेन एज आई सेड बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए, बट बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन चलाएगा, वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाए. इसको रैप अप करते हैं. और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से अबाउट योर प्रोफेशन, और कोई ज्वाइन करना चाहता है, सो क्यों करे वो एक्चुअली ज्वाइन, व्हाट इज अ मोटिवेशन फैक्टर. और अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना भूल गया. मे बी आफ्टर यू कंप्लीट दिस आई विल आस्क दैट क्वेश्चन. सो क्या है ऐसा मोटिवेशन फैक्टर आप किसी को देना चाहोगे कि यू शुड ज्वाइन? See, this field is full of excitement, as I told you before. आपको एडवेंचर पसंद होना चाहिए, plus money. Obviously money is a big factor in this particular field. So once you join this field of Merchant Navy, so your packages are very good. I'm sure everybody was thinking कि हमने मेन बात तो की नहीं जो कि सैलरी की होती है. Everybody is excited about it, so I think it's good that you reminded. मैं पूछना भी चाहता था. So the packages are very good, but again, it depends that you are into which company. If we have Shipping Corporation of India, then you have the private companies which are based outside. So if you talk about the private companies which are based outside, so that starts from around, you can say, once you complete your cadetship, you become third officer.
So it starts from more than 3,000 USD. Okay. And as you grow in your rank, that also increases. But when like you from join 30 to 3,500, then 40 to from 4,000 to 4,500. Okay. Then you can say maximum can go up to 15K. Okay. 15K. And this is per month. Yes, right? yes. 15,000 US dollars per month. Yeah. Okay. ये भी मैं कम बता रहा हूँ. If you join some LPGs or LNGs, so it can reach to 17K. ये approximate एक idea इतना होती है, yes, right? yes. अच्छा, 12th के बाद जब हम join करते हैं, so you said कि वो 3 years का जो भी period होता है, उसमें भी do you get paid for that? I'm sure you do, but yes, you get a stipend. हाँ, in the form of, you can say, हमारे ज़माने में तो बहुत कम था, अभी तो बहुत increase हो गया, around 1,000. Around 1,000 US dollars per month. Yes. Right? Okay, nice. And once you become a captain, या आपने दूसरा जो बताया था जो engineering field में होते हैं, क्या बोला था आपने नाम? Chief engineer. Chief, yes. तो उनका क्या salary packages आजकल चल रहे हैं? Same packages. अच्छा. जो मैंने आपको बताया, जैसे जो deck side है engine side, both goes side by side. Okay, fine. ठीक है. So I'm sure बहुत लोगों को idea लग गया होगा कि पहली बात तो मोटिवेशन फैक्टर क्या है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए. आर यू द राइट वन टू डू दिस और नॉट? यू नो दिस बेटर. और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कितना एक्साइटमेंट है, क्या सैलरी पैकेजेस है, जो कि मेन चीज़ होती है. आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव गॉट दिस आइडिया. भैया थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है आप अपनी आज ड्रेस में आए हो, इससे तो और अच्छी फीलिंग आ रही है. when I met him today morning, I felt really good that he made sure कि अपनी एक ड्रेस में हो, so that we actually give a ये तो एक लाइव डेमो काइंड ऑफ थिंग जो हम देते हैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर से. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. देखो जब आप अपनी यूनिफॉर्म में होते हो तो आप में अलर्टनेस अपने आप आ जाती है, अपने आप आती है. आई थिंक वो प्रोफेशनलिज्म भी अपने आप आने लग जाता है. जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपके अपने आप आ जाता है. ट्रू ट्रू. सो यू शुड लव योर जॉब. Perfect. Thank you so much for your time today. Do subscribe to this channel and keep watching such kind of exciting videos. Thank you everyone. Thank you, Ekansh.